It's been days since Lakshman Utekar's Chava has released, and it is one of the most unnerving experiences anyone will face. It really showcases and exposes, rather, the dark, brutal truth about India's history. And one of the finest performances, I think, in the film for me was by Vineet, who plays Kavi Kalash in the film, and it was truly, truly unnerving. So, firstly, thank you, Vineet, for joining me on Filmation Me. I think we've been wanting to do an interview for a while, actually. We've always kind of communicated, and somehow it's never worked out. But I'm glad today we've been able to arrange this. So, thank you so much for joining me. Yeah, my pleasure. Thank you. Thank you so much, Anuj. All right. So, look, let's begin with Chava. It was a very hard, I mean, as hard it was for us to really watch as audiences, for you as an actor to really, number one, kind of go into that zone of ancient India and colonized India, and also then to uska pehnava, uska jo dialect. There's so many things. If you could break that process down for me and how difficult it was, Vineet, if at all, it would be lovely to hear your insights. Uh, Anuj, first of all, I would like to thank my director Lakshman Udekar sir and Madoc Films for this opportunity because I never did anything like this before in my career. And thanks to Vaibhav Vishant who did the casting, anti-casting. Uh, Lakshman sir and Vaibhav, they were so convinced. Even Lakshman sir didn't ask for the audition for this role. Even Vaibhav didn't ask for the audition for this role because, see, it's a big film, Anuj, and there is not a single photograph of mine in any historical, space. So it was like conviction of the director and the team, and that's how I got this opportunity. And later on, for the preparation, uh, I started reading whatever material was available, and I heard lots of things. I love to listen my director and writer, and the script is very well written. And Lakshman Utekar sir, he is from Raigad, so for him this is very personal because Hmm. his childhood is completely filled with Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj stories, you know. Hmm. So he was very clear what he want to make and how he want to make. Hmm. And after collecting all those information, I started my preparation. I read the script again and again. And my character Kavi Kalash, he is a poet and warrior. So for poetry, I started reading poetries, and that was one side. And for the war sequence and all, uh, we started training like horse riding, uh, stick, sword, and bhala, and so many things. Hmm. Group fight kind of. So that training was like going on and on, and the whole training and shoot like that took almost around more than 10, 11 months Hmm. including shoot. So it was like fantastic experience, and I just love to keep reading, script again and again because script is like a torch. The script always says something. If you are reading the same line, you know, you can get some new kind of feel. And here it was very new because it was loaded with poetry. My character, you Hmm. know. Hmm. So he normally in reply also he starts with poetry, जी. you know. So whatever he feels, it comes out in like some kind of melodious, poetical, that kind of, and his own way to say things. Hmm. So I was just keep trying those things, and thanks to Irshad Kamil sir, who wrote the poetry in the script. So somehow these were those things Hmm. which really helped me. Actually, बहुत ही, it was very candid. Thank you so much for saying that. But I think uh,
मैंने एक चीज नोटिस किया है एक्चुअली, आपकी जो फिल्म्स में वो एक लॉयल्टी नाम की कोई चीज होती है, वफादारी। आई थिंक दैट्स वन एस्पेक्ट दैट आई हैव नोटिस इन ऑल योर कैरेक्टर्स इज लॉयल्टी. And I think this character is as loyal as it comes. Like you said, there was no obvious reference point. So if how difficult was that scene? I think towards the end of Chava, where हम आपके नमक है, वो वाला scene, because हमें इतना मतलब एक एक बहुत, it was very difficult to watch, as I mentioned in my introduction as well, that you know एक it was very heartbreaking. एक sense of बगावत भी थी, एक अच्छाई का साथ देने की वो जो एक उम्मीद भी थी. कितने सारे लेयर्स थे उस सीन में. तो आपके लिए इमोशनली ब्रेकडाउन कैसे हुआ वो सीन? एंड also the camaraderie that you managed to create with Vicky was very exceptional. So what was that prep process like for you? Uh, uh, when we were reading the scene, at that time, Lakshman sir explained this scene exactly what we are seeing today on the screen. Hmm. It was very clear in his head. This is the scene I'm going to shoot this way. Now, if I'm revisiting that, if I'm remembering when he was explaining the scene, तो ये ऐसा ही था जो आज हम देख रहे हैं. उन्होंने ऐसा ही सोचा था कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी और वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा एंड इमोशन धीरे 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 ऊपर जाएंगे. तो इट वाज डिजाइंड बाय हिम एंड वो सीन के लिए एक्चुअली मेरा भी वो फेवरेट सीन था. विक्की का भी ये फेवरेट सीन था. I was waiting for this scene, and somehow, as an actor, this scene was my, lalach. Hmm. ये फिल्म करना है. ये कुछ नया है ना. पोइट्री क्लाइमेक्स में रेयर है कि एक वॉर फिल्म में पोइट्री जो है क्लाइमेक्स में खड़ी हो. तो वो अपने आप में बहुत स्पेशल था एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट सीन. विकी के साथ एक कनेक्शन है. विकी इज लाइक यंगर ब्रदर टू मी एंड वो एक एहसास रहता है बिकॉज when we did Gangs of Wasipur, he was assistant, I was in front of the camera as an actor, and उसके तब से ही एक बॉन्डिंग है हमारे बीच में. एक एक कुछ है, एक म्यूचुअल हमारे बीच में कुछ तो है. इवन है सनी के भी साथ काम किया तो सेम फीलिंग थी. गोल्ड भी जी, हमने की थी गोल्ड में. साथ में, सनी कौशल, है ना. प्लस जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी तो श्याम जी, विकी के फादर, ही वाज द एक्शन डायरेक्टर. तो कौशल फैमिली का कुछ तो है मेरा कनेक्शन, यू नो. एंड जब ये कर रहा था तो विकी जिस तरीके से बधा हुआ था तो मैं हमेशा मुड़ के देखता था और बस मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये मेरे भाई को बांध रखा है और जिसे छील के रख दिया है. और वो इमोशन लोड होता था एंड दैट ऑलवेज लाइक. तो पूरी रात चलता है, मल्टीपल शॉट्स हैं, बट ये भाव, ये फीलिंग से, दिस वाज माय फीलिंग व्हेन आई वाज लुकिंग अप टू विकी बिफोर द शॉट. माय ब्रदर इज देयर एंड आई एम नॉट फीलिंग द पेन, which is on my body. I am feeling the pain for my Maharaj. So that that was the emotion, that was the seed, and Hmm. the respect. Because while the preparation, I was very clear they are friends. They fought like Burhanpur war together and so on, so many wars. And Chhatrapati Sambhaji Maharaj, he loved him like anything. And there is like very special bonding between them, and so many things were there. And when the situation came and there was an opportunity for Kavi Kalash, like he, वो जा सकते थे रायगढ़ के लिए जब महाराज ने उनको बोला था. क्योंकि इतनी समझ तो होती है कि 150 लोग अंदर हैं और 5000 लोग बाहर से घेर चुके हैं. तो इस लड़ाई का रिजल्ट क्या आने वाला है ये तो कवि कलश जी को पता ही रहा होगा. Hmm. लेकिन उन्होंने ये चुना कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा. जी.
तो दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द, और मराठा साम्राज्य की आन बान शान के लिए उन्होंने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, और हंसते हंसते, ऐसा भी नहीं कि झुके ही नहीं, हम्म, कि वो औरंगजेब के सामने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी झुके ही नहीं, उनकी स्पिरिट को ब्रेक नहीं कर पाए, एंड दैट वाज द विक्ट्री, एंड हम्म, दैट इज समथिंग पीपल आर सेलिब्रेटिंग। हम्म। यू नो, आई थिंक मैंने बहुत सुना है ऑब्वियसली मराठा साम्राज्य के बारे में। ऑब्वियसली संभाजी महाराज की जो एक कंट्रीब्यूशन जो थी, मैंने उसके बारे में तो नहीं सुना था ऑब्वियसली फिल्म के आने से पहले। बट यू नो, दिस चैप्टर विनीत हैज बीन ब्रश अंडर द कार्पेट फॉर सो लॉन्ग। आई थिंक इस फिल्म के आने से पहले क्या आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता थी उनके जो योगदान थे, खास करके उसके बारे में, और जो ऑब्वियसली मुगलों की जो तानाशाही थी और जिस तरह से टॉर्चर किया गया है? एंड आई थिंक द फैक्ट दैट literally the first brutal imperialists on India, they were that. So how did you have an understanding before, you kind of did Chava, and before you kind of decided to come on board for the film? अनुज, ऑनेस्टली कुछ चीज़ें तो पता थी, लेकिन इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता थी, बिकॉज व्हेन आई केम टू मुंबई एट दैट टाइम, मैं महेश मांजरेकर सर के साथ था, जी। मतलब आई गॉट ब्रेक, यू नो, इन हिज फिल्म, माय फर्स्ट फिल्म, एंड देन मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में की। तो बहुत, महाराष्ट्र का नमक मैंने बहुत खाया है, हम्म। एंड हम, मतलब महाराष्ट्र मुझे घूमने को बहुत मिला था उनके साथ, महाराष्ट्र के बारे में बहुत चीज़ें मुझे पता चली उस दरमियान। तो ये छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी कुछ पता था, कवि कलश जी के भी बारे में पता था, लेकिन इतना नहीं पता था। मैं उत्तर भारत से हूँ, मैं बनारस से हूँ, कवि कलश जी उत्तर भारत से थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतना नहीं पता था, कहीं कुछ ज़्यादा कभी, मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह में ऐसा डिटेल मुझे पढ़ने को कभी मिला नहीं। और बाद में मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया, तो अगर कोई बुक आ गई तो पढ़ पढ़ लेता है आदमी, बट कुछ ऐसी चीज़ मुझे नहीं, इतनी डिटेल नहीं पता थी। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने 127 वॉर लड़ी थी हम्म। और You वो know, जीते थे। जी। और एक्चुअली रिएक्शंस मैंने कुछ पढ़े थे सोशल मीडिया पे, और as always, whenever there comes a story like this, it's always number one, quite frankly, it's deemed as number one as propaganda, or number two, people dismiss the idea because they've not heard about it. I think we need, as an artist, जब आप ये सब पढ़ते हो सोशल मीडिया पे, जब कुछ लोग आरोप लगाते हैं ऐसे फिल्मों पे कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, या they're questioning the reality, they're questioning what actually happened. um हम्म। हम सब जानते हैं कि ये एक सच है, बट फिर भी लोग उसको ब्रश अंडर द कार्पेट करने की कोशिश करते हैं। So, why do you think there has been this constant uh, pressure of dismissing Chava? What do you think has perhaps contributed towards it, and how do you remain unaffected as an artist to not allow people's judgment or views to, to kind of cloud you and cloud your perspective? सी अनुज, अक्सर ऐसा होता है कि जो विजेता होता है इतिहास वही लिखता है, राइट? Hmm. क्या सही है, क्या नहीं सही है, ये बाद की बात है, लेकिन संसार में होता ये है कि जो विजयी है, जो जीत जाता है, इतिहास उसी के पक्ष में लिखा जाता है। जो किसी भी वजह से, अगर आप जीत नहीं पाए, तो आपकी बहुत सारी चीजें कहीं लुप्त हो जाती। जी। स्टिल, स्टिल महाराष्ट्र की जो आन बान शान है और जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने वो गाथाएं जिंदा रखी हैं। मैं थिएटर्स में जा रहा हूँ, पीपल आर क्राइंग, Hmm. अरे true. किड्स, किड्स अनुज, वो आके ऐसा चिपट गए मुझसे, बच्चे थे 7 साल 8 साल के, उनको जब पता चला नहीं कवि कलश ये इन्होंने किया है एंड ही इज अलाइव,
बच्चे के लिए एक अलग फीलिंग होती है ना, ये जस्ट हग मी। तो ये जो इमोशन है ना, ये इस फीलिंग ने, या जो भी एक स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे बीच में छत्रपति संभाजी महाराज आज भी हैं, हमारे एहसास में हैं, है ना। हम्म। लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम, अगर पूरे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो आई एम श्योर कि 70% के आसपास, द एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, महाराष्ट्र के बाहर 70% से ज़्यादा होंगे जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। तो ये फिल्म के माध्यम से लोगों को ये इतिहास का वो पन्ना, है ना, ये किरदारों की अपनी गरिमा, इनका त्याग, इनका बलिदान, इनका साहस, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। हम्म। ये आसान नहीं होता अनुज। जस्ट इमेजिन, एक छोटी सी चोट लग जाए, उस पर डिटॉल लगाने में लोगों की नानी याद आ जाती। जी। छोटी सी एक इंजरी हो एंड समवन इज पुटिंग डिटॉल ऑन इट, तो आदमी सी सी करने लगता है। जिसकी पूरी बॉडी को छील दिया गया हो, उस पर आप नमक डाल रहे हो, यू नो, जिसकी आंख में, है ना, गरम सलिया डाल दिया, जिसकी जुबान निकाल ली, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट को तोड़ नहीं पाए। और यही खींच थी औरंगजेब की, कि मैं झुका नहीं पाया। हिस्ट्री में है, लिखा हुआ है, जो बुक है वहां भी लिखा हुआ है ना, मेरी तरफ आ जाओ। हम्म। तो ये था, तो दिस इज द विक्ट्री, कि आप फिजिकली उस सिचुएशन में हैं जहां पे यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट फिजिकल फॉर्म के अलावा जो चीज होती है वो और बड़ी, की स्पिरिट। जब तक वो जिंदा है, आप जिंदा हो। हम्म। एक्चुअली मैं अक्सर ये सोचता हूँ, एंड जब आप एक पीरियड फिल्म कर रहे होते हो, सी व्हाट वी सी इज द एंड प्रोडक्ट, राइट, इज इवेंचुअली जब सब कुछ तैयार है पेश करने के लिए, वो हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। बट जब आप शूटिंग कर रहे होते हो, बिकॉज एक तो आपका कॉस्ट्यूम्स है, लाइक आई सेड टू यू ऑल्सो अबाउट द डिक्शन एंड यू मेंटली सराउंडिंग योर सेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट। बट आई थिंक फॉर मी द बैकग्राउंड स्कोर, आई मीन, I would have never ever dreamt of even seeing a film on the Maratha Empire, made in such a big scale, that too with the visual aesthetics, with the background score. Was so, you mentioned about, what Lakshman told you, the director told you about the music getting louder and louder. But जब आप सेट पे थे, तो obviously आपको अनुमान नहीं होगा ना, because तब तो सब कुछ raw ही होगा. You didn't get the sound of the music at all, did you? It Whilst was not music. I said about the volume of the volume, dialogue. volume of the Because dialogue. when the distance, like two characters are going away, जी. you know, Sambhaji, Chhatrapati Sambhaji Maharaj is here, and this character is going away. तो डिस्टेंस इनके बीच में जब बढ़नी शुरू होती है, तो इनकी वॉइस की वॉल्यूम बढ़नी शुरू होती है। जी. तो हाँ, म्यूजिक का तो बिल्कुल, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज गोइंग टू कम हियर। या प्लीज कंटिन्यू। Yeah, no, no, no. Please, I would love to know your insights about that, because see, because music really is a big tool in stirring the emotions in the audience as well. जब हम final product देखते हैं, तो जब आपके पास एक म्यूजिक नहीं होता है, and obviously there's only certain amount of मटेरियल जो आपके पास एक्सेसिबल होता है, ऑब्वियसली डायरेक्टर है, आपका खुद का रिसर्च है और वगैरह वगैरह, बट उसके अलावा शूटिंग करते वक्त इतना इमोशनल और हैवी सीन, what else do you think really helped you to elevate it, especially when you didn't have the technical aspects visually with you? Ah, just to be honest, in that moment, this is the key. एज एन एक्टर, मेरी कोशिश होती है कि उस मोमेंट में मैं ईमानदार रहूं, बिकॉज ऑनेस्टी की अपनी एक ब्यूटी होती है। एंड दूसरी चीज, लिसन टू योर डायरेक्टर।
follow the script. You should know this why this scene is in the script. What is the reason? There must be like 100 other scenes which is not in the script, because आप 2.5 घंटे की फिल्म में या 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में सब कुछ तो कवर नहीं कर लेंगे. तो why this particular scene? Hmm. you know why? So there is some reason, like there is a reason, like why this scene is there in the script. Hmm. तो वो why को समझना बहुत जरूरी है. प्लस you have to be secure. You have to be secure. Just be honest and go for the scene. बाकी चीजें आप तो तैयार करते हो, बिकॉज दिस इज माई जॉब एज एन एक्टर. आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर. एज एन एक्टर दिस इज माई ड्यूटी. दिस इज समथिंग विच आई लव टू डू. और ऐसा भी नहीं होता अनुज के एक शॉट में पूरा सीन कवर हो गया तो बस हो गया वो सीन. ऐसा तो होता नहीं. Hmm. रेयर कभी कभी ऐसा होता. तो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. सो वहाँ पे आप अपने ऊपर जितना काम करते हैं वो आपको हेल्प करता है. एंड विक्की के साथ बहुत ही मज़ा आया काम करने में. मतलब अ, बहुत ही बढ़िया था. लंबा हमारा शेड्यूल था, लंबे समय तक हम साथ थे. इट वाज वंडरफुल. And it's not even just that scene though. Even I think the last battle sequence was, I mean, I remember seeing the teaser when it first came out, and it really, I mean, it took me a lot. And I'm so sorry I'm asking you so many questions about Chava. I will come to the other parts of of your filmography as well. But I just think I just need to ask these questions because मेरे दिमाग में इतना छप चुका है वो सब चीजें that I just need to get it out because I feel वो जो एक scene था ना battle वाला, it it was insane. I mean that chaos that unfolded. या ऐसा मैंने chaos किसी भी period film में नहीं देखा है. And I feel, this could have easily been a very typical magnum opus, but it was not that. It was raw. There was a rawness. So, या Vinny, if you could please talk about the action sequences and the way those were choreographed and how you as an actor felt, because even though you were not actively doing as much in that sense, you were there, but you were not like actively doing the talwar bazi as much as perhaps some of the other cast members were. How did you um, what did that experience perhaps teach you about the yudh niti of that time and that era? या दैट सीक्वेंस, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू शूट. काफी दिन तक वो सीक्वेंस चला है बिकॉज वो छोटी सी जगह में. इट वाज 5,000 मुगल्स एंड 150 मराठास, जो जहाँ पे वो आखिरी लड़ाई हुई है. तो चारों तरफ से घिरे हुए थे. और लक्ष्मण सर का ही ये आइडिया था कि ये वो वाली लड़ाई नहीं है जहाँ पे आपको पूरी जगह मिलेगी. यहाँ लिटरली लोग दांत से भी लोगों ने एक दूसरे को काटा है. Oh my कि goodness. हाँ, बिकॉज उसमें जगह ही नहीं. तो आप यू कांट मूव योर हैंड. तो छोटे वेपन्स उसमें यूज हो रहे थे या ताकत यूज हो रही थी. एंड लिटरली एक दूसरे को काट रहे थे. ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, घुसे पड़े हैं लोग. तो वो शूट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. बट दैट वाज द आइडिया लक्ष्मण सर का. एंड वो उसी तरीके से शूट किया गया. तो उसमें ये होता था, उस जगह में जब एक्शन हम लोग करते थे तो अनुज ऐसा भर जाता था. होता था और भरो और भरो और भरो और भरो. और फिर ऐसा होता था कि ऐसी जगह जहाँ पे 10 लोग होते हैं वहां करीब करीब 100 लोग घुस चुके हैं हम. और फिर एक्शन होता था. तो ये सिचुएशन जहाँ 6 लोग खड़े होते हैं वहां 60 लोग खड़े हैं उतनी जगह में. और फिर वैसे ही शूट हुआ वो कि कैमरे को लेके कहाँ खड़े हों उसकी भी जगह नहीं मिल पाती थी. तो एक प्लेसिंग बनती थी कि यही एक जगह है. और तो ऐसे ही वो डिजाइन था और ऐसे ही हुआ है कि 150 मराठाओं के ऊपर 5,000 लोग थे. तो एक के ऊपर इमेजिन करो
कितने हो गए. And that sequence was designed that way, and for me it was very new. Hmm. It was very new, but it turned out so well. Yeah, again, it was such a new project, and I think that's why, like, अगर Gangs of Wasseypur से लेके, even if you look at your first film पिता, उससे लेके अब तक, I think जो journey रही है ना आपकी, I think it's been, I mean, growth is definitely a big word for sure to Thank describe it, but I think जैसा मैंने आपको introduction में कहा, and like how you said, मैंने what was it, महाराष्ट्र की नमक बहुत खाया है, you mentioned हाँ, something. महाराष्ट्र का वो है, डेस्टिनी में था कि वही. महाराष्ट्र का नमक खाया है, बिकॉज महेश मांजरेकर सर वो महाराष्ट्रियन हैं, और बहुत बार उनके घर पे खाना खाया है. Right. Now, the reason why I mentioned that again is because, like I said also in the introduction, is loyalty. Even in your next project, Superboys of Malegaon, which I've seen, it is incredible. It was such a beautiful film. Again, आपने बस I think ठेका लिया हुआ है मेरे को रुलाने का because every film that you've been a part of in the last couple of releases, I've cried. भर भर के. No. बट अच्छा है, कुछ आंसू निकल जाते हैं तो इंसान हल्का हो जाता है. हाँ, वो भी बिना प्याज को यू काटे, फील which is लाइटर, फील लाइटर. very true. No, but look, I think it's wonderful how you have loyalty as a very important theme in all your films that you've been a part of. Even if we look at Mukkabaz, even I will even like to mention here this segment that you have. I think it was Murabba in Bombay Talkies. या Uh, that मुरब्बा. Murabba. I remember राइट. seeing you back then, and वो जो एक आपकी जो एक स्ट्रगल होती है कॉमन मैन की हर एक फिल्म में, it is not there with full on आंसू बहाना या पॉवर्टी को ग्लोरीफाई करना. एक एक उम्मीद होती है आप में. there's a sense of loyalty and faith. am I right in saying, विनीत, कि वो जो दोनों चीज है, वो आपकी जिंदगी में बहुत भी लागू होता है, faith and loyalty? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच, अनुज. यू नो सी थिंग्स विद दिस पर्सपेक्टिव. मैं ये मानता हूँ अनुज के, फेथ अगर नहीं है तो आप कितनी दूर तक चल पाओगे. यू नो तो फेथ होना बहुत ज़रूरी है. आप खुद का सपना हो, यू नो या कोई छोटे छोटे टारगेट्स हों, तो आपको खुद ये एक बिलीफ होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, है ना. तो फेथ एक स्ट्रेंथ लेके आता है. बाकी आप जो भी कर रहे हैं या जिसके भी साथ हैं, लॉयल्टी में एक स्ट्रेंथ होती हम्म. है ना. तो मैं अपनी लाइफ में भी ऐसा ही हूँ. मतलब मेरी दोस्तियां ऐसी ही होती हैं, जिससे होती है वो ऐसी ही होती है कि उसमें मैं बहुत सारे मटेरियल और कंडीशंस और बाजार और ये सब मैं नहीं देखता. मैं ऐसे ही कवि कलश जी के जैसे निभाने वाला आदमी हूँ. मैं रियल लाइफ में ऐसा ही इंसान हूँ. जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको पता है ये बात. तो मैं मतलब फिर ये नहीं देखता कि मदद करनी है और मेरे पास टाइम नहीं है या किसी वजह से नहीं जाना है, वो सब नहीं देखता मैं. हाँ, हूँ तो रहूंगा, आपके साथ हूँ तो रहूंगा. तो समहाउ ये चीजें हेल्प करती हैं, बिकॉज वल्नरेबिलिटी जो है ये मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत आसान कर देती है मुझे एज एन एक्टर किसी किरदार में अडॉप्ट होने के लिए. हम्म. मेरे लिए आसान, बिकॉज मैं सुनता हूँ, मैं डायरेक्टर को सुनता हूँ, फिर चीजें अपने आप होने लगती हैं. हम्म. फिर खुद ही अंदर से खुद ही ये कॉल आने लगती है कि ये नहीं करना है, और दिस इज समथिंग जिस पाथ पे मुझे चलना है. वो डोंट्स क्लियर होने लगते हैं. जी. मैं ये सोच रहा था, but Vineet, actually just now as you were talking and as I asked this question to you about faith and loyalty, um, somehow I feel a lot of the films, I mean, excluding the darker ones, that जो obviously जो काफी uncomfortable होती है या एक सामाजिक तौर पर होती है, उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हुए, जो अलग अलग फिल्में हैं जो आपकी, जो लाइक आई मेंशन बॉम्बे टॉल्कीज,
I also mentioned Bombay Talkies. We obviously have Superboys of Malegaon, um, uh, Chava. Even if we look at Sand Ki Aang Gold, all these movies that you've been a part of, I feel they've basically been aspects of your life. Mukkabaz also, because एक तो आप sports में रुचि रखते थे. In fact, I believe you played on a national level on Yeah, basketball, basketball. right? So Yeah, you played on that. So and obviously आपको हमेशा से एक passion थी acting को लेके. You've always been yes, passionate. In fact, I read up somewhere that you wanted to be a part of NSD, but because of things, yeah, you could not be part of that. And yeah. even when I look at films like Superboys of Malegaon, it looks at ambition of cinema and acting. Bombay Talkies was literally about that. Gold and Mukkabaz is about sports. Sand Ki Aankh is also about sports. It almost feels like somehow वो जो आपकी जो एक manifestations या जो इच्छाई जो थी जिंदगी में Mm-hmm. वो थोड़े से ना फिल्मों के रूप में आपके पास आ चुकी है. Have you ever thought about it this deeply? Have you ever realized or ever wanted or ever imagined that the universe would give it back to you in this form or shape? I think yes. Mm, और मुझे लगता है जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वो किसी वजह से होते हैं. mm, तो वो कहीं ना कहीं जो इतना सारा एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे काम आता है एज एन एक्टर. बिकॉज हर तरीके के लोगों के साथ बहुत सारा वक्त बिताने को मिला है. तो वो एज एन एक्टर वो चीज़ें कहीं ना कहीं दैट जो कहते भी हैं ना कि एक्टर का एक्सपीरियंस बैंक जो है मजबूत होना चाहिए. जी इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, देन वो काम आता है आपको. जी. Now मैं ना आपने जो कहा दोस्तों के बारे में and I think this is a good segue to talk about Superboys of Malegaon because Superboys of Malegaon is a very beautiful film. I think जो friendship को लेके और second chances को लेके ambition को लेके बहुत सारे beautiful themes है उस film में. um I think some of the emotional outbursts and the ambition that you have there, I think is very much you, Vineet, from what you've described to me. Um, वो जो आपका जो character था, because it's obviously inspired by a real life story. The film is actually based on a documentary too. नो, Um, इट्स नॉट बेस्ड ऑन. from the real person, Nasir. हाँ, जो रियल पर्सन शेख नासिर, ये जी उनके ऊपर और उनके दोस्तों के ऊपर है. और जी. हम बहुत मतलब डीपर साइड में जाते हैं एक एक किरदार के. हाँ तो मैं वही पूछने वाला था because obviously it's based on the real characters but there was a documentary based on it. So for you how much did that make the process a little easier for you as an actor because you had an obvious reference point where you perhaps didn't have in Chava because you was literally only you were reliant on other information लेकिन आपके सामने यहाँ पर सुपर बॉयज और मालेगांव में पूरा का पूरा information और एक पूरा एक इंसान हाँ. available था सीखने के लिए. So how was that process for you? अ, मेरे लिए यहाँ भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इस मामले में रहा कि जो मेरा किरदार है फरूक जाफरी का, मुझे मिलने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज हम्म, वो अब इस दुनिया में नहीं है. जी और मैं जब इस फिल्म में आया उसके काफ़ी पहले अ, वो इस दुनिया से जा चुके थे. तो कहानियाँ बहुत सुनी फरूक जाफरी के बारे में. हर कोई फरूक के लिए दिल खोल के तारीफ करता है. तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी. जो राइटर का किरदार है उसके लिए मतलब मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं खाली समय में लिखता हूँ और मुक्काबाज मैंने मेरी सिस्टर ने साथ में लिखी थी और भी कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं. तो वो एक साइड का तो मुझे पता था कि ठीक है राइटर्स के अपनी क्या परेशानियां होती हैं, वो कैसे सोचते हैं. तो मैं मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो मैं जानता हूँ कि जो राइटिंग में काफ़ी सारा वक्त जो गया. दूसरा जो ये लोग फिल्म बनाते हैं तो बिहाइंड द कैमरा का भी एक्सपीरियंस मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में हो गया था बिकॉज आई हम्म एज आई टोल्ड यू महेश जी के साथ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, महेश मांजरेकर सर के साथ. तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर थी मेरे लिए. ओके. जो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था वो ये कि रीमा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रीमा कागती, उनके साथ मैंने गोल्ड की थी. एंड हम्म
एग्जैक्टली। रीमा ने मुझे ट्वेंटीज के लड़कों के बीच में खड़ा कर दिया कि ये उनका दोस्त है। तो फरूक का किरदार एक ऐसा 2 साल 3 साल ही बड़ा है इन सब से, और ये सब ट्वेंटीज के हैं सारे लड़के। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि यार मैं तो इन सब से 10 साल बड़ा हूँ। तो मेरे लिए ये था कि कैसे भी करके पहले इनके साथ ब्लेंड हो जाओ, इनके साथ खड़े हो तो ऐसा ना लगे कि यार ये ना थोड़ा, ये ग्रुप से ये नहीं दिख रहा है, ऐसा लगे कि ये सब एक साथ रोज उठने बैठने वाले एक ही हम उम्र लोग हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था, एंड थैंक्स टू रीमा कि रीमा ने मुझे ये चैलेंज दिया। तो मैं उसको लेके बहुत ज्यादा मुझे ये था कि मैं इनके बीच में ब्लेंड हो जाऊं। एंड बाकी जो चीजें थी कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है, वरुण ग्रोवर ने बहुत प्यारी स्क्रिप्ट लिखी है। रीमा शी इज लाइक फैंटेस्टिक। रीमा के साथ काम करना मतलब आपको समझ में आता है डिटेलिंग क्या चीज होती है। हाँ, फॉर कि श्योर। अगर ना, हाँ अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर ये चश्मा है, ये, तो ये ऐसे फ्रेम का ही चश्मा क्यों है, ये इस कलर का क्यों है, ये सब पे डिस्कशन हो चुका होता है रीमा की फिल्म में। वाओ। एग्जैक्टली सब हो चुका। मैं अगर ये पहना हूँ तो मैं क्यों पहनता हूँ, इसके पीछे क्या वजह है, वो उस पे भी रीमा सोच चुकी होती है। मैं स्क्रिप्ट पे तो आ ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज शी हरसेल्फ शी इज ऑल्सो अ राइटर। यस। तो किरदारों की समझ इतनी अच्छी है रीमा की कि कोई किरदार क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा क्यों बोलेगा, वो सब कुछ ऐसा लगता है रीमा के अंदर रहता है वो। और फिर क्या होता है कि एज एन एक्टर आपके लिए आसानी होती है, और पूरी जो टीम है सारे एक्टर्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, गुड बंच ऑफ बॉयज। इट वाज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। आदर्श, शशांक, अनुज, पल्लव, ज्ञानेंद्र, सब सब बहुत ही कमाल है। आपने मेरा नाम लिया, हो सकता काश मैं फिल्म में होता, बट हाँ। नहीं, बट नो, फिल्म it भी, was हमारी फिल्म में भी एक प्यारा लड़का है अनुज। अनुज okay. सिंह। Yeah, no, definitely. I've seen the film, and it was very relatable. I think because it was such a, again, it was a very rooted story. And I think again, वो जो अब एक और भी एक प्रोजेक्ट आ रही है जो भी काफी रूटेड है, काफी हद तक, बट ऑल्सो वेरी exciting, which I'm very looking forward to, is Jat. Um, Obviously, Sunny Deol and Randeep Hooda, who have been, I would say they've been disruptors in their own way, because obviously वो stars तो है ही, established actors तो है ही, but उनका अलग से एक पहचान बन चुकी है अब. They've literally made their own way and, carved that journey for themselves. तो जाट obviously एक बहुत ही action thriller है. It's a masala film from what I saw in the promo, from what I think is the story. But uh, how was it like for you to really step into this zone of proper desi rooted masala films, because we've not had that for a long time. It's been a long time since we've had a proper hardcore masala movie. अब जाट करने में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मैंने भी ऐसा कुछ पहले नहीं किया है। Hmm. दिस इज समथिंग वेरी न्यू। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं गोपी चंद मेलिनेनी, उनके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है। वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स नाउ। एंड मैत्री मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री, दे आर लाइक एक्सीलेंट प्रोडक्शन हाउस। मैत्री के साथ तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़े दिन की मेरी शूट रह गई है। और ये जैसे सनी सर का आपने बोला, बेशक एक अलग ऑरा है, एक अलग इमेज है जो बहुत ही स्ट्रांग है। और उनकी तो फिल्में मैंने ब्लैक में खरीद खरीद के देखी हैं टिकट, तो बहुत सारी यादें हैं। तो मज़ा आ रहा है, और ये बहुत अलग होगी फिल्म। ये मतलब हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है। ये ऐसा एक्शन है जो सनी सर के साथ भी ऐसा एक्शन आप लोगों ने मतलब लोगों ने नहीं देखा हो। Hmm. बिकॉज हम लोग शूट कर रहे हैं तो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, सनी सर के साथ हम लोगों ने बहुत एक्शन देखा है। नाउ दिस इज सम डिफरेंट लेवल काइंड ऑफ एक्शन, यू नो एंड बहुत ही स्टाइलाइज्ड फिल्म बन रही है। इट्स क्रेजी क्रेजी।
Hmm. And अभी तो उस प्रोसेस में है तो ज्यादा डिटेल में अभी कुछ नहीं कहूंगा, बट दिस इज समथिंग आई एम अगेन, जैसे छावा के लिए, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए एक्साइटेड हूँ। जाट इज अगेन इन दैट लिस्ट, और ये मास मसाला है। हाँ. या And the reason why I ask this question, because it actually makes sense, because जो हो रहा है ना अभी हिंदी सिनेमा में, because देखा जाए विनीत, I think there's like a big transition period happening in Hindi cinema. You know, एक एक बहुत सारे films जो rooted है, I think because of the heavy influence of and popularity of the South, I think Hindi cinema is also becoming somewhat inspired to retrace its roots again and to really go back to telling stories जो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई है और जो actually काफ़ी आध्यात्मिक, जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ जो लाइक आई सेड वेरी जो स्टोरीज जो कभी सुना नहीं गई हो, वैसी वाली स्टोरीज आ रही हम्म है। तो मैंने एक्चुअली सुना था, एक्चुअली किसी ने एक पॉडकास्ट किया था एंड दे सेड दैट it's important for Hindi cinema to remain rooted, otherwise, it'll become regional to the South Bombay and English speaking audiences rather than the Hindi audiences, which is a very interesting perspective, I find. Um, Vinny, how have you dealt with the sort of Zameen se judi hui stories at a time, especially jab obviously NRI stories काफी popular थे, obviously, and they're also great as well, no doubt. The- हम्म but at the same time, for you, how important is it for this new phase of Hindi cinema to really bring like rooted stories now? सी ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे, अगर कहा जाए तो मैं यही बोलूंगा कि ऑडियंस तैयार है कुछ नया लेने के लिए। ऑडियंस तैयार बैठी है, कुछ नया आप दो उनको, लेकिन शायद हम लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं उनको कुछ नया दे पाने के लिए। अक्सर ये शिकायत रही है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है हम वही बना रहे हैं। इस बार क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द ओटीटी एंड ऑल, जो बाउंड्रीज हैं कंट्री टू कंट्री की, लैंग्वेज टू लैंग्वेज की, वो बाउंड्रीज समहाउ मेल्ट हो रही हैं। Hmm. And now it's very easy to explore some cinema, you know which happened in Germany or somewhere in Europe or US or UK or Korea or anywhere. Now those things are accessible. तो जो ऑडियंस पिछले 5-7 साल से ये देख रही है, और आज की डेट में वो 18 साल या 19 साल या 20 साल का लड़का या लड़की है, तो उसका जो लेवल है एज एन ऑडियंस, वो बहुत अपग्रेड हो चुका है, Hmm. because they are consuming that kind of stuff, you know that kind of cinema series जो पूरी दुनिया में बन रहा है और हर तरीके का वो एक्सप्लोर कर रहा है। Hmm. तो अब आपको अपना स्टैंडर्ड हाई करने की जरूरत Nice. है। ऑडियंस इज रेडी फॉर न्यू काइंड ऑफ फिल्म्स। आर वी रेडी? दिस इज द क्वेश्चन। Very good point. Yeah, no, it's a very good इफ point. एंड दिस इज समथिंग जहां मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि व्हेन देयर इज अ क्राइसिस काइंड ऑफ, कि पीपल डोंट नो क्या क्या बनाया जाए, कैसा बनाया जाए, क्या चलेगा। कोई बोलता है नहीं सिर्फ बड़े बजट की फिल्में चलेंगी, बट 12th फेल तो चली ना, Yeah. राइट? बहुत ही बढ़िया सुंदर फिल्म बनाई विधु विनोद चोपड़ा सर ने, Hmm. राइट? तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारी ऐसी भी फिल्में जो बहुत बड़े बजट की थी, बहुत एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो उसका रिजल्ट वैसा नहीं रहा। तो जी. इट्स नॉट अबाउट, जो मैं मानता हूँ, बिकॉज सी एक अच्छी कहानी होल्ड करके रख सकती है लोगों को, लेकिन ये बिलीफ के साथ लोगों के बीच में जाएं कि यही फिल्म है, इसको ही हम अपना गोल्ड मान के चलते हैं, Hmm. इसको ही, यही हमारा डायमंड है, इसको हम वैसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं ये है यार, बहुत ऐसा करके नहीं कर जाएगा। जब मेकर्स का ये बिलीफ होता है तो मैजिक होता है। Hmm. So audience is looking for some new kind of subjects, new kind of films, interesting plot, interesting things. But I think हमें अपग्रेड करने की जरूरत Hmm. I would like to follow up with this actually, because I mean, obviously, see, there's only so much that
one can say and one can actually imagine or think of doing. But upgrade is a very, very good way to describe it, because I feel like, I think especially corporate systems का क्या है, like especially जो बड़े बड़े कंपनीज का क्या है, कॉपी एंड पेस्ट वाला फॉर्मेट तो चलता ही रहता है. बट आई डोंट थिंक दे वेरी स्लो इन रियलाइजिंग, बहुत धीमे ये रियलाइज करने में कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी अब. और नॉस्टैल्जिया के नाम पे सब कुछ नहीं बिक सकता है. एक लिमिट होता है उस चीज़ के लिए. तो विनीत, आपके हिसाब से वो अपग्रेड क्या होना चाहिए, शायद स्टोरीज में, शायद उस एक फिल्म को बनाने में. तो वो आपके हिसाब से, अगर आप एक फिल्म मेकर होते, अगर आप एक प्रोड्यूसर होते, तो आपका क्या एक उपदेश्य होता एक नया दौर लाने में हिंदी सिनेमा में और इंडियन सिनेमा में जनरली. सी मतलब मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा कुछ लिखा है और एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, लोगों से बातचीत होती है तो जो समझ में आता है किसी सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की। सपोज आपके पास प्रोड्यूसर भी है, आपके पास डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, ओके, लोकेशन भी ले ली, स्क्रिप्ट नहीं है, क्या शूट करोगे आप? सबने डेट्स दे दी, सब बना दिया, हम्म. है ना, शहर दे दिया आपको, जाओ शूट करो, क्या करोगे आप? कितने मेकर्स हमारे पास ऐसे हैं जो जिनके पास कहानी नहीं है और शूट करने निकलें, और एक फिल्म लेके आ जाएं? कितने मेकर्स हैं हमारे पास ऐसे? तो सारा प्लान जो है शुरू होता है एक कहानी से, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो है ना कि राइटिंग, हम्म. क्योंकि वहां से जब एक बेहतर कुछ मजेदार कहानी निकल के आएगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। अभी रिसेंटली जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था, रितेश सिधवानी ने बड़ी अच्छी बात बोली, हम्म. जो एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर हैं। रितेश ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोग सब हो जाएं, लेकिन अगर राइटर नहीं है, राइटर ने कुछ लिखा नहीं है, तो हम सारे के सारे बेरोजगार हैं। या, ट्रू. हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर हमारे पास कहानी ही नहीं है तो बनाएंगे क्या? हम सब बेरोजगार हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे टेक्नीशियन हो। तो मुझे लगता है शुरुआत यहाँ पे एक बड़ा वैक्यूम है, यू नो और जब एक अच्छी कहानी आ जाती है तो एक्टर्स हैं हमारे पास अच्छे, हम्म. डायरेक्टर्स भी हैं हमारे पास अच्छे, तो टेक्नीशियंस भी हैं अच्छे। सारी चीज़ें समय के साथ ऊपर लिफ्ट होने लग जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम ऐसे दौर में चल रहे हैं कि हम अपनी, जो आपने भी बोला, हम अपनी कहानियां कहें। हम्म. क्योंकि अब वेस्ट से तो कहानियां आ ही रही हैं, साउथ से भी आ रही हैं, तो अब उनकी कहानी हम क्या कहें? उनकी कहानी हमारी कहानी से ज्यादा रियल होगी अगर वेस्ट से बिलोंग करती है तो। हम्म. हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा अपना समाज है, हमारे अपने समाज में जो कहानियां हैं हमें वो उठाना पड़ेगा। हम्म. वेल और एंड. बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। हमारे यहाँ इतना सी ना, हम तो ब्लेस्ड हैं एज अ कंट्री, हम लोग के ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो भी क्या क्या अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। हम्म. आप वेदर के हिसाब से देखो, तो 3 वेदर हैं। रेन भी है तो प्रॉपर चलती है रेन ना 3-4 महीने, हम्म. समर्स हैं तो 4-5 महीने वो भी चलता है, विंटर भी चलता है। फिर आपको यहाँ बर्फ भी मिलती है, आपको रेगिस्तान भी मिलता है, आपको हरे पहाड़ भी मिलते हैं, लाल पहाड़ भी मिलते हैं। यहाँ म्यूजिक अलग अलग है, आप साउथ में चले जाइए अलग म्यूजिक है, कश्मीर में चले जाइए अलग म्यूजिक है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए अलग म्यूजिक है, आप यूपी बिहार में चले जाइए अलग म्यूजिक है, राजस्थान में चले जाइए अलग तो म्यूजिक की कितनी वैरायटी है, हम्म. फूड की कितनी वैरायटी है, कॉस्ट्यूम्स की कितनी वैरायटी है, विजुअल्स की कितनी वैरायटी है। जस्ट हमें इस खजाने से कहानियां निकालने की जरूरत है। यस, आई थिंक डेफिनेटली, बट आई थिंक चेंज आएगा फॉर श्योर. उम्मीद डेफिनेटली तो है. आई मीन, दिख रहा है कि अच्छे कंटेंट Yes. बनने शुरू हो गए हैं. तो उम्मीद तो कभी नहीं छोड़ा है, एंड वी डेफिनेटली नेवर और शुड. ये सुपरवाइजर, और ये सुपरवाइजर मालेगांव, ये उम्मीद से भरी फिल्म ही है।
Exactly, exactly. But I think on a final note, actually, Vineet, because like you mentioned, there are a lot of things that you've been a part of. They've been new experiences. Chahe Chava ho, chahe um, Jaat ho. A lot of the films that you've been a part of, there's a new experience. इस न्यू एक्सपीरियंसेस करने के बाद uh, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है एज एन आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ द sort of वर्क यू वुड नाउ लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ, या कोई ऐसी कोई एक चीज़ है जो आपके जहन में है कि हाँ, अगर मौका मिले तो मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या एक कैरेक्टर तौर पर हो या एक स्टोरी के तौर पर। ये अपनी फिल्मों के थ्रू कुछ ना कुछ मतलब मिल ही जाता है, और फिल्मों का असर बहुत गहरा होता है। जैसे छावा का जो असर है वो मैं देख रहा हूँ, है ना, लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। एज एन एक्टर बेशक मैं चाहूँगा करना, और एज एन एक्टर जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो भी करना चाहूँगा। पर्सनल लेवल पे एज एन एक्टर मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत अलग तरह की फिल्में हैं जो करना चाहता हूँ, जो अभी तक मौका नहीं मिला। लाइक जोया अख्तर की फिल्म में जिंदगी को लेकर के किरदार किस तरीके से मैच्योर होते हैं, यू नो, उसको जितनी खूबसूरती से जोया अख्तर शूट करती हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, जितनी तारीफ की जाए कम है। कि आप कैसे लाइफ को समझ पाते हो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो एक टेक अवे रहता है हमेशा उनकी हर फिल्म से, चाहे वो लक बाई चांस हो, चाहे वो गली बॉय हो, चाहे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई। तो वो एक स्पेस है जो मुझे कभी मौका नहीं मिला, और मैं जोया के साथ काम करना चाहता हूँ। हम्म। दूसरा, विक्रमादित्य मोटवाने इज इज जीनियस। बिकॉज विक्रमादित्य मोटवाने की मैं जितनी भी फिल्में, जब सारी फिल्में उठा के देखता हूँ, तो हर फिल्म में जॉनरा चेंज करते हैं, हम्म। लेकिन पकड़ उतनी मजबूत होती है। जी। उड़ान में जो पकड़ थी, है ना, वो पकड़ ब्लैक वॉरेंट में भी नजर आती या। है। एंड सी द जनरा, जो उड़ान में पकड़ थी वही पकड़ लुटेरा में भी नजर आती है ना। तो एके वर्सेस एके में नजर आती जितनी उनकी फिल्म, है ना। आप जो जुबली शो आया था वो देखो, तो वो समझ में आता है कि ये एक अलग दुनिया वो क्रिएट करते हैं, हम्म। और सब हर दुनिया एक दूसरे से अलग है। एट द सेम टाइम इम्तियाज अली सर की फिल्म में मोहब्बत को लेकर के, लवर्स को किस तरीके से, यू नो, खुद को समझ पाना, हम्म। खुद की कमियों को समझ पाना, वो प्यार के आसपास वो जिस तरीके से अनफोल्ड करते हैं, और कैसे किरदार जो है मैच्योर हो जाता है, कैसे पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए चेंज होते हैं। तो ये मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अ, मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ जहाँ पूरे दिन मस्ती चलती रहती है, तो कॉमेडी करने का मौका ही नहीं मिला अभी तक, कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तो वो एक जॉनरा है जहाँ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुक्काबाज के बाद आउट एंड आउट एक्शन फिल्म, मतलब जैसे छावा मिली है, बट रियल लाइफ में आज के समय में छावा पीरियड फिल्म है, आई एम हैप्पी लोग पसंद कर रहे हैं। बट रियल लाइफ में जैसे मुक्काबाज का एक एक्शन है रॉ, रियल स्पेस में, मैं वो स्पेस में कुछ करना चाहता हूँ, यू हम्म। नो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू। तो आई या। होप छावा की वजह से, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की वजह से, जाट की वजह से मुझे वो फ्रीडम और मिलेगी एज एन एक्टर, ताकि मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर सकूं। और इसी का तो मजा है ना। हम्म। बिल्कुल, absolutely, honestly, wow, this was very this was a beautiful, beautiful session, Vineet. I think, मुझे पता था कि जब मैं इंटरव्यू करूंगा ना आपके साथ, तो कुछ ना कुछ कमाल होने वाला है उस इंटरव्यू में। मेरे को अंदाजा था पहले से ही। आई वाज लाइक, क्राफ्ट के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, सिनेमा को लेके बहुत अच्छा चर्चा होने वाला है, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। सो आई एम सो ग्लैड दैट देर आए दुरुस्त आए, और हम एक्चुअली बहुत अच्छा एक इंटरव्यू कर पाए आज। सो थैंक यू सो मच, विनीत, फॉर ज्वाइनिंग।